गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक बच्चे के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस, डाउट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हम डिस्कस करेंगे। और जो पहला उनका डाउट क्वेश्चन है वो ये है कि अगर कोई प्रोटॉन बीम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उस रीजन से वो अनडिफ्लेक्टेड पास होता है, उस केस में उस प्रोटॉन बीम की वेलोसिटी क्या होगी एंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वैल्यूज हमें गिवन है। अब यहां पर आप ध्यान दें कि क्रॉस साइन से हमने रिप्रेजेंट किया है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इन केस व्हेन चार्ज पार्टिकल passes through inward magnetic field, it will experience a magnetic force, and direction of that magnetic force can be determined by using Fleming left hand rule. According to Fleming left hand rule, this finger indicates the direction of magnetic field, and if this finger points in the direction of motion of the charged particle, then thumb points in the direction of force. यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है? इनवर्ड, तो हम इस फिंगर को इनवर्ड साइड में टर्न करेंगे, एंड दिस फिंगर is pointing in the direction of motion of the charged particle, then thumb is pointing in upward direction. It means when that charged particle passes through the uniform magnetic field, it will experience force in upward direction. And in case of uniform electric field, we know that positive charged particle experiences force in the direction of electric field. अब यहां पर ये जो चार्ज पार्टिकल है वो अनडिफ्लेक्टेड तभी पास हो सकता है if the force due to the electric field is in downward direction, and it is possible only if the electric field is in downward direction. यानी इसलिए यहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को किस डायरेक्शन में मार्क किया है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. When the same charge particle passes through this downward electric field region, it will experience force in downward direction, magnetic force, which is given by q vb sine of theta, as theta is the angle between velocity vector and magnetic field vector. Magnetic field vector is inward, velocity vector is along the plane in this direction. Angle between them is 90 and sine of 90 is 1. It means the magnetic force, it is equal to QVB. Okay, and in case of electric field, the force due to electric field is equal to the product of charge and electric field, and direction of that force is same as that of the electric field. Now, as the resultant of these two forces जीरो होना चाहिए, क्यों जीरो होना चाहिए? सो दैट द चार्ज पार्टिकल पासेस अनडिफ्लेक्टेड. मीन्स वी इक्वेट द मैग्नेटिक फोर्स विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. वी गेट QVB is equal to QE. Q से Q cancel, and from here we get the value of velocity of moving charge particle. Velocity is equal to E by B, and strength of electric field is given to us, and the strength of electric field is 100 kilovolt per meter, and 100 kilo stands for 10 raised to power 3, and its unit is volt per meter, and the strength of magnetic field is 50 millitesla. 50 milli stands for 10 raised to power minus 3. इसको अगर हम सॉल्व करें तो velocity of that proton beam is found to be equal to 2 into 10 raised to power 6 मीटर पर सेकेंड. तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम उस प्रोटॉन बीम की वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं विच गेट पास थ्रू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अनडिफ्लेक्टेड. और अनडिफ्लेक्टेड किस केस में होगा? अगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, इसमें एक क्वेश्चन और है कि ये जो प्रोटॉन बीम है इट हिट्स ए टारगेट, एंड वी हैव टू फाइंड द फोर्स विथ विच that proton beam hits the target if the current due to the proton beam is equal to 0.8 milliampere. अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें फोर्स फाइंड आउट करना है. We know that force is equal to the product of mass into acceleration, or we can also write it is equal to the change in momentum per unit time. Okay, delta P, that is the change in momentum of the proton per unit time. अब क्वेश्चन ये उठता है क्या सिर्फ एक सेकंड में सिर्फ एक प्रोटॉन इससे टकराएगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन व्हिच हिट्स द टारगेट इन 1 सेकंड. एज वी नो दैट करंट इज इक्वल टू द चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. ओके, इफ T is equal to 1 second, then Q is equal to current. It means the charge which hits the target in 1 second
इज इक्वल टू आई एंड आई इज इक्वल टू 0.8 मिली एम्पियर, लेकिन चार्ज की यूनिट है तो हम इसको लिखेंगे मिली कूलम, और वी कैन राइट इट एज 0.8 into 10 raised to power minus 3 coulomb. This will be the amount of charge which hits the target in 1 second. Okay. Now, if we have to calculate the number of proton particles which hits the target, we know that Q is equal to n times of charge of the electron. Okay. And it is equal to 0.8 into 10 raised to power minus 3 coulomb. From here, we can calculate the value of n, which is equal to 0.8 into 10 raised to power minus 3 divided by charge of the electron. It is equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. इसको अगर हम सॉल्व करें तो वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 1/2 एंड it is equal to 5 into 10 raised to power 15. Means this number of proton hits the target in 1 second. अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज द वे टू फाइंड आउट द फोर्स। उसके लिए हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना पड़ेगा। चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन ऑफ द प्रोटॉन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। जब वो प्रोटॉन टारगेट को हिट करेगा द मोमेंटम ऑफ द प्रोटॉन विल बिकम इक्वल टू 0 एंड इट्स इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू mv, where m is the mass of the proton and v is the velocity. Okay, so this will be the change in momentum of one of the proton. Therefore, we can write the total change in momentum. It is equal to n times of minus of mv. नेगेटिव साइन को हम इग्नोर कर सकते हैं, जस्ट वो फोर्स के डायरेक्शन या चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है. इट मींस बाय यूजिंग दिस रिलेशन, n की वैल्यू हमें पता है, मास ऑफ प्रोटॉन इज आल्सो नोन टू अस एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन बीम वो हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया है. इट मींस हमें डेल्टा p की वैल्यू पता है एंड डेल्टा t ऑलरेडी हमने डेल्टा t कंसिडर कर रखा है एज 1 सेकेंड. तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट f इज इक्वल टू डेल्टा p बाय डेल्टा t. तो चेंज इन मोमेंटम हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ n मास एंड वेलोसिटी, वेयर n इज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन व्हिच हिट्स द टारगेट इन 1 सेकेंड, m इज द मास ऑफ द प्रोटॉन एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ दिस प्रोटॉन बीम. ओके, एंड डेल्टा t ऑलरेडी हमने 1 सेकेंड ले रखा है. बाय यूजिंग दिस रिलेशन वी कैन आल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फोर्स which it exert on a target. Okay. Now in next question it is given that an electron enters inward uniform magnetic field with a velocity of 4 into 10 raised to power 4 meter per second. Okay, and the strength of applied magnetic field is 10 raised to power minus 5 Tesla. यहाँ पर दो चीजें दी हुई है कि एक तो हमें इस इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्टरी को ड्रॉ करना है, सेकेंड वी हैव टू फाइंड द टाइम इन विच the electron again comes out from the applied magnetic field. अब क्वेश्चन ये उठता है कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स एंड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय QVB sin of theta. Okay, in case when V and B are perpendicular to each other we can find the direction of force by using Fleming rule. According to Fleming rule, this finger indicate the direction of magnetic field. ये चार्ज के मोशन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और ये फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, मोशन ऑफ द चार्ज इज अलोंग द प्लेन ऑफ द बोर्ड टुवर्ड्स राइट साइड. ओके, थंब इज पॉइंटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, बट दिस रूल इज वैलिड फॉर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. इन केस ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल या तो हम ये माने कि इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, या फिर सिंपली अगर हम बात करें कि नेगेटिव चार्ज के केस में जो लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जो फोर्स का डायरेक्शन आ रहा है फोर्स उसके अपोजिट लगेगा. मींस व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस डाउनवर्ड फोर्स एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय EVB as angle between them is 90 and sine of 90 is equal to 1. And this force, as this force is acting perpendicular to the velocity vector, it can only change the direction of velocity vector without changing its magnitude. क्योंकि यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जैसे जैसे वो चार्ज पार्टिकल कर्व पाथ फॉलो करेगा वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा और वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज होने के साथ साथ फोर्स का डायरेक्शन भी
चेंज होगा एंड द फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर एंड सच टाइप ऑफ फोर्सेज आर कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। मींस ये जो मैग्नेटिक फोर्स है इट प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द चार्ज एंड वी कैन राइट it is equal to mv square by r. From here we can write the radius of the circulating charge is equal to mv upon eb. Okay? अब यहां पर आप ध्यान दें कि ये एक सर्कुलर पाथ फॉलो करते हुए इस पॉइंट पर आकर वो फिर से मैग्नेटिक फील्ड रीजन से बाहर हो जाएगा, यानी कि जस्ट आफ्टर कवरिंग सेमी सर्कुलर पाथ इट कम्स आउट फ्रॉम द uniform magnetic field. Let us calculate the time taken by the charged particle to move out of the uniform magnetic field. So time taken, we know that speed is equal to distance upon time. तो टाइम को हम लिख सकते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सेमी सर्कुलर पाथ, सर्कल की लेंथ होती है 2 पाई आर, तो सेमी सर्कुलर पाथ की लेंथ होगी पाई आर। ओके, एंड दिस डिस्टेंस इज कवर्ड विद वेव वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन। द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट एंड फ्रॉम दिस रिलेशन आर बाय वी इज इक्वल टू एम बाय ए बी। तो टी इज इक्वल टू पाई एम अपॉन ए बी। ओके, पाई की वैल्यू हमें पता है, इट्स वैल्यू इज 3.14। एम इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, उसकी वैल्यू भी हमें पता है। चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन वो भी हमें पता है। और बी इज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, इट्स वैल्यू इज आल्सो नोन टू अस। फ्रॉम हियर बाय सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम टेकन बाय द electron to move out of the uniform magnetic field. Now if we substitute the value of pi, m, e and b, we will get t is equal to 1.8 into 10 raised to power minus 6 second. Next जो numerical problem है raised by that student is उसका डायग्राम मैंने ऑलरेडी पहले ड्रॉ कर रखा है, लेकिन फिर भी मैं एक बार वो न्यूमेरिकल आपके सामने बोल रहा हूँ, ध्यान देना। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इलेक्ट्रॉन बीम moves horizontally with this kinetic energy, means the energy of the electron beam is equal to 18 kilo electron volt. K stands for kilo and EV stands for electron volt. Okay, and magnetic field is applied perpendicular to its direction of motion. Okay, and now we have to find the vertical distance covered by the electron beam while it covers a horizontal distance of 30 centimeter. यानी जब वो इस मैग्नेटिक फील्ड से हॉरिजॉन्टली 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन उसके अंदर कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। एक बार इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर हमने मार्क किया है मैग्नेटिक फील्ड इन इनवर्ड डायरेक्शन एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली। ओके, इन सच केस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग फ्लेमिंग रूल। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग रूल ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ये चार्ज के मोशन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा एंड थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, मोशन ऑफ चार्ज इज अलोंग द हॉरिजॉन्टली इन दिस डायरेक्शन, थंब इज पॉइंटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। लेकिन अब आप ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इन केस ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इट विल एक्सपीरियंस फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि फ्लेमिंग रूल के अकॉर्डिंग फोर्स का जो डायरेक्शन आ रहा है इलेक्ट्रॉन पर फोर्स उसके अपोजिट लगेगा। इट मींस फोर्स एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो डाउनवर्ड साइड में डिफ्लेक्ट होगी। नाउ वी हैव टू फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड विद 30 सेंटीमीटर ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब आप ध्यान दें, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, द मैग्नेटिक फोर्स व्हिच एक्ट्स ऑन द इलेक्ट्रॉन बीम इज इक्वल टू QVB sin of theta and theta is 90, means sin of theta is equal to 1, means the magnetic force which is acting on the charged particle is given by EVB. Due to this force, the charged particle accelerates in downward direction and hence it can be written as ma is equal to EVB. From here we can write acceleration in downward direction is equal to EVB upon m. Okay? इस ये जो इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन से रिजेंबल्ड पाथ है। इसमें दो तरह के मोशन है, हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन एंड वेयरएज वर्टिकल मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन एंड द एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन इज गिवन बाय दिस रिलेशन। ओके, सबसे पहले अगर हम हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर करें तो इन हॉरिजॉन्टल मोशन इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज इक्वल टू v। ओके,
डिस्टेंस कवर्ड अलोंग हॉरिजॉन्टल विच इज इक्वल टू 30, मैं उसको सिर्फ x लिख रहा हूं, एंड टाइम टेकन इज इक्वल टू t seconds, and acceleration along horizontal is 0 because no force acts along horizontal direction. अगर इस इक्वेशन को हम यूज करें s is equal to ut plus half of at square, as acceleration is 0 तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास बचेगा s is equal to ut means x is equal to v into t. From here we can write t is equal to x by v. Okay, so now if we consider the vertical motion along vertical direction, the initial vertical velocity is 0. Initially वो horizontally move कर रहा था, it means vertical velocity is 0, and distance covered along vertical direction is equal to y. और कितने टाइम में ये y distance cover कर रहा है? t टाइम, जितने टाइम में उसने x distance cover किया है. And acceleration along vertical direction already हमने calculate कर रखा है, it is EVB upon m. Okay, again by using the same relation, s is equal to ut plus half of at square. From here we can write y is equal to, ये जो फर्स्ट पार्ट है 0 हो जाएगा because initial vertical velocity is 0. Half of acceleration which is equal to EVB upon m and t square, and t is equal to x by v whole square. It means y is equal to EVB upon 2m into v square and x square. Y is equal to EVB upon 2mv square into x square. अब यहाँ पर जो भी वैल्यूज हमें पता है उन सब की अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं. एक v से यहाँ पर एक v कैंसिल हो रहा है, and we are remaining with EB upon 2 mv x square. अब आप ध्यान दें, as we know that momentum is equal to product of mass into velocity, and the relation between kinetic energy and momentum is that it is equal to p square by 2m. From here we can write momentum is equal to under root of 2m ek. अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो mv है, it is a momentum, and momentum can be replaced by 2m ek. So हम इस momentum को replace करेंगे by under root of 2m ek. Okay, और साथ में यहाँ पर x square भी है. जो भी वैल्यूज हमारे पास उन सभी वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 raised power minus 19. Okay, and magnetic field, in the question it is given that the magnetic field is equal to 0.44 Gauss, and 1 Gauss is equal to 10 raised power minus 4 Tesla. Means magnetic field is 0.4 into 10 raised power minus 4. Okay, and x square, where x is equal to 30 centimeter, इसको अगर हम मीटर में चेंज करें तो we can write it as 9 into 10 raised power minus 2 under root of 2. Mass of the electron is 9.1 into 10 raised power minus 31, and kinetic energy of electron is given to us. It is 18 kilo. Kilo stands for 10 raised power 3, and 1 electron volt, its value is equal to 1.6 into 10 raised power minus 19 joule. तो हम इसको लिख सकते हैं 1.6 into 10 raised power minus 19 joule. ओके, अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 1.6, 0.4 एंड 9, इन सबको एक साथ लिख दिया. 10 raised power minus 19 minus 4 and minus 2, it is equal to 10 raised power minus 25. ओके, अब डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 है. अब यहाँ पर अगर आप चेक करें तो ये 2 और ये 18 कैन बी रिटन एज 2 into 9. तो 2 और 2, इसका जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ जाएगा 2. 9.1 और 9 लगभग हम सेम मानते हुए इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 9. ओके, और इस 1.6 को हम लिख देते हैं 16 into 10 raised power minus 1. अब 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 4. अब हमारे पास जो 10 की पावर्स बच रही है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं. 10 raised power minus 31 into 10 raised power 3 is 10 minus 28. minus 28, और इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो ये 10 raised power minus 20 आ रहा है. तो ये आ रहा है minus 28 और ये minus 20. एक तरह से हमारे पास बच रहा है रूट के अंदर बच रहा है 10 raised power minus 48.
तो इट मींस जब उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 10 रेज टू पावर -24। ओके, अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये कैंसिल होकर सिर्फ बचेगा 10 रेज टू पावर -1, जिसको कि हम डिनोमिनेटर में लाकर इंटू 10 लिख सकते हैं। ओके, अब इसको अगर हम सॉल्व करें 4 तो एक और 0 आ जाएगा। अब थोड़ा और अगर इसको हम चेक करें तो जो कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर देते हैं। 4 से एक 4 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल। ओके, और इस 1.6 को भी पॉइंट हटा देते हैं, ये 1000 आ गया। तो ये 4 मीन्स हमारे पास बच रहा है 4 डिवाइडेड बाय दिस विच कैन बी रिटन एज 10 रेज टू पावर -3 मीटर। Means the vertical distance covered is equal to 4 into 10 raised to power -3 meter.